Yes. If you see here, we have iterable, the interface is extended is right. So the covering list is implemented by iterable हमने देखा था. Iterable is a function iterator which returns iterable blank pack. Collection provides some helping. The list is again further extending collection. List is inter using list. What we do, we can store. There are two things. It's all of these are implementation. You see carefully, there are four classes: array list, linked list, in which we can. तो आप मतलब सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्लासेस अगर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करना, why they have provide these, so they should have given only one class. Okay, elements add. तो डुप्लीकेट डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास एरे लिस्ट है, वेक्टर है, चार ऑप्शन है. चारों में से कौन सा कब यूज, सिंपल, इन चारों में से कौन सा क्लास. राइट. अब हम एक एक चीज देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस. पहले देखते हैं एरे लिस्ट. व्हाट इज एरे लिस्ट? इज एरे लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, लोग ये पता, they are not able, जब मैं they are not able to focus, at least you should say it class implements which implements this interface. It is a concrete implements this interface. अभी इस ये कॉन्क्रीट क्लास है, मतलब इस क्लास का आप क्लास कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट. अभी ये क्लास क्यों दिया है? क्लास दिया है मतलब वो जब कलेक्शन स्टार्ट, तो collection framework provides data structure algorithms through
तो डेटा स्ट्रक्चर थ्रू क्लासेस मतलब क्लास दिया है, मतलब उन्होंने क्या दिया, बस उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और एक कंटेनर। क्या करना, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बन गया मतलब आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो array list, using array list what we can do, using array list can store multiple elements, the single unit. Using array list can store multiple elements as a single unit. Multiple elements, same type or the one thing। अभी इसमें कौन से एलिमेंट्स स्टोर कर सकते, एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोर एलिमेंट्स। homogeneous as well as sequence data, then we can then insertion। अभी इसमें आप null insert can insert, null can hold any number of extension। अभी ये क्या है, इट इज एन डेटा स्ट्रक्चर। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर array list is a linear data structure। linear data मतलब क्या होता है, array list works on, array list is a throwable array, array list uses throwable क्या करता है array list, इंटरनली ये मेंटेन डेटा स्ट्रक्चर। array list कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर है कंटेंट, वो क्या मेंटेन कर, throwable array data। इसका मतलब क्या होता है, array list internally contains the contains an इंटरनली एक एरे, जैसे आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एरे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मतलब कोई भी क्या करने वाला, एक एरे क्रिएट करेगा। वंस दैट old array is full, create a new array क्या है उसका कैपेसिटी, कैपेसिटी 1.5 टाइम्स डिफॉल्ट कैपेसिटी, डिफॉल्ट कैपेसिटी default capacity of array list is the default capacity 10, how many elements, now once that array is full it will capacity 1.5 times कितना 10, तो 1.5 to 10 कितना 51, नया array कितना बनेगा, once old array is full create new array capacity, copy the content of old array
What is array list? How array list? How array list? Interview बोल सकते हो आप how array list works? How array list works? This is a structure inter it a new capacity system. Copy the content. अभी आपको बता array. Now फिर इसका हम कुछ advantages भी देखें. All theoretical polynomial. What are the advantages? Advantages के of array list. Sure. No. Tension नहीं. And since it is meant, since it how the elements it maintains elements are segment elements are stored sequence. Relooking का फायदा क्या होता है? फिर जब 3 क्लास में स्टूडेंट बैठे कॉल कर एक साथ बहुत डिफिकल्ट होगा मुझे पहले इस क्लास चलेगा. सारे लोग इधर ही बैठे which one is better access. So since array elements are stored in continuous accessing elements, so retrieval of elements are student sequence. So retrieval is faster. Read करना retrieval of element क्या बेनिफिट हो array का क्या बेनिफिट can access any element faster. सबसे ज़्यादा ये बहुत फास्ट एक्सेस एनी एलिमेंट डायरेक्टली आप सकता है. आई कैन एक्सेस एनी टेक्स्ट ऑर्डर टाइम क्लॉक faster. Do you think there is other benefit? Benefit? Do you think what is the benefit? ज़्यादा मुझे disadvantage. Disadvantage
अभी हम देखो यहाँ एरे ओल्ड एरे का एरे में अब मैंने एक नया एरे, अब मेरे पास एक 1 मिलियन की लिमिट है, एक ही limit। स्टेज ऑफ शॉर्टेज की जरूरत नहीं, लॉट ऑफ वेस्ट से let's say we'll talk about this point election। अब ऐसे आपको कोई ऐसे घर में कुछ गिफ्ट्स लेके आए घर और सारे बच्चे एक ही बार टूट, एक साथ सारे बच्चे एक प्रॉब्लम होगा, तो डेटा इन कोई आता है थ्रेड सेफ है क्या, दीज आर मल्टीपल थ्रेड्स योर array list योर मल्टीपल थ्रेड्स कैन particular array list doing read operations not in multiple threads are there। talking about ये देखो समझ सकते दिस वन थिंग। के बाद एक और इसमें बहुत एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है एरे की अगर आपको डेटा क्या करना पड़ता है, देन अब मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट डिलीट, ये एलिमेंट डिलीट क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना एरे में कुछ एलिमेंट डिलीट करना मतलब डिलीट तो वैसे के वैसे ही रहने वाला है। आप डिलीट का मतलब क्या होता है, उस जगह पर दूसरा बैठने वाला, वहाँ पर जो डेटा होगा उस जगह पर दूसरा के बैठने वाला डेटा दैट ये वाला एलिमेंट तो देयर विल बी लॉट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट तो लेफ्ट। अभी यहीं पर अभी मुझे कुछ आई वांट टू, अभी यहाँ पर आपका लेट से खाली स्पेस, इस जगह पर मुझे क्या करना है, सेट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट एलिमेंट सारे एलिमेंट्स एक एक स्पेस राइट शिफ्ट या इधर लेफ्ट राइट शिफ्ट, देयर विल बी लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ योर परफॉर्म
some manipulation or lot of shifting of events. अगर 1 बिलियन रिकॉर्ड्स है, 1 बिलियन रिकॉर्ड्स है और आपने इसको डिलीट करने का, क्या होगा, इसके राइट वाले सारे लेफ्ट शिफ्ट इन रिकॉर्ड. एक्सपेंसिव, is very expensive operation. So array list is first choice. Array list is the first choice if your frequent of manipulation of array list कब worst choice, जब आपका सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, शिफ्ट. then array list कब यूज करना है, array list when array list is, it is worst अगर आपका फ्रीक्वेंट ऑपरेशन है रिट्रीवल ऑफ डेटा, आप ज्यादा कुछ नहीं करने वाले. तो इट इज बेस्ट, array list is best when this is the best choice if the frequent operation is read operation. बस operation. बस आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट रीड कर. array list is worst, array list is worst choice of manipulation, insertion. First है there will be lot of get और अभी प्रॉब्लम और क्या प्रॉब्लम एडवांटेज है. तो अभी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आ रहा होगा इतने सारे क्लास व्हाई देयर मस्ट बी दीज मेनी. अभी array list क्या यूज करते हैं, इंटरनली एरे यूज करते हैं. ऐसे ही वो एरे फुल होता है, व्हाट इट विल डू, will create new array, copy the content of old array into new array, append the element उसका. और नए array का कैपेसिटी old array plus 1. तो इसमें एक और ट्रिक क्या है यहाँ पर, अगर आप बहुत ज़्यादा एलिमेंट ऐड कर रहे हो और आपका एरे अभी फुल हो गया, इट्स 1 बिलियन रिकॉर्ड, एक और एलिमेंट आपने ऐड किया, तो क्या ऐड करने नया एरे क्रिएट होगा, न्यू कैपेसिटी, न्यू कैपेसिटी, दैट विल बी लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ. अभी इंटरनली ये क्या स्टोर करता है, एरे एज इट इज स्टोरिंग द एलिमेंट्स एज पार्ट. तब इंटरनली वो एरे यूज कर रहा है, खुद क्या यूज कर रहा है, एरे. और एरे यूज होता है मतलब एलिमेंट्स विल बी इन सीक्वेंशियल. होगा कि हमने देखा मतलब लोकेशंस, अगर सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस है तो एलिमेंट्स एलिमेंट को एक्सेस करना, एक्सेसिंग बिकम्स एंड दैट इज फास्टर. अगर आपका मतलब इंटेंशन है कि बस एक बार डेटा स्टोर करना है और बाद में मुझे कुछ उस पर ऑपरेशन करना है, बस मुझे डेटा रीड करना है. एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टोर लिस्ट ऑफ कंट्री states of district characters, list of digits, ये चेंज होने वाले. तो यू स्टोर सच डेटा, आपको पता है कि इसमें कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं होती, ये डेटा मेरा फिक्स रहने वाला. यू ट्राई टू यू. एग्जाम्पल कब यूज करना चाहिए एरे लिस्ट, एडवांटेज if you are storing advantages, to use is recommended to use array list, is recommended
डेट नेम, ये आपको पता है कि चेंज ऐसा डेटा स्टोर आप यूज करते हैं। क्लियर है? फॉर 2 मिनट। array list implements, या बोल सकते हैं array list list क्लास को implement, there is array list, there is array list present, cover out। और ये array list क्यों क्लास दी है, what is the reason, is the reason of this, what is array list class है, full class है मतलब डेटा स्ट्रक्चर। तो इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं array list का, what is the benefit of store can be of value, and we can, the elements can, array list कैसे काम करता है, array list कैसे काम करता है, so internally it maintains that array is create a new array with a new, it creates new array with what is the new capacity, old capacity, copy the content of the array into the elements, what are the advantages of array list, एडवांटेज पहले आप array कैसे स्टोर, array elements are stored in sequential locations, so the advantage your स्टोरेज उसको एक्सेस करना भी, इसको ऐसा समझो एरे मतलब आप ऐसे साथ बैठे हो एक साथ, अगर अभी लेट से आप 5-7 लोग इधर अलग अलग रूम में बैठे हो, तो सबके साथ कुछ बात करनी है, एक्सेस करनी, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ईच क्लासरूम में एक साथ कंटिन्यूस टाइम एक्सेस करना, दैट इज द एडवांटेज। पैरेलल कब यूज करना चाहिए, डेटा आपको पता है आपका परफॉर्मिंग ज़्यादा ऑप्शन पैरेलल ज़्यादा शिफ्ट, और एक और है वहाँ, there will be a lot of questions,
you're not adding. अभी कौन सा डेटा स्टोर करने के लिए ऐड करके जो भी है ज़्यादा ज़्यादा आपका head over to the ID. रेडीमेड सबके पास है अभी कौन है सर के पास नहीं है कि नहीं हम्म, ठीक है कौन सी दुनिया अल्टीमेट नाम के लेट्स हैव अ लुक ऑन द array list. Okay, this is present inside java dot package. यहाँ पर प्रेजेंट है java dot util package और ये बहुत सारे resizable array resizable और growable array implement is implements all optional permits in null type का data. In addition, the implementing list in this class provides methods to manipulate array that is used in the this class is roughly equivalent to vector except that it is ये आपको एक बताऊं वेक्टर क्लास और array list exactly same class difference array list is not thread and vector array list is vector is synchronous exactly same working भी same है exactly vector बहुत पुराना क्लास है it is not used that much array list and vector यहाँ पर देखो size is empty get set iterator list it operation order of क्या बोला उन्होंने देखो फिर से एक बार देखो इसको तो आप जैसे तो टाइम लिस्ट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है आप सिंपली आपको मतलब ज़्यादा ज़्यादा डिटेल्स मतलब इट इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम टेकन टू क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट इज जस्ट अ मेजर और टाइम टेक ऑपरेशन एक यूनिट तो आउटर ऑफ वन मतलब सबसे फास्ट
कांस्टेंट टाइम से फास्ट है। यहाँ पर देखो साइज इज एम्प्टी गेट सेट इटरेटर एंड लिस्ट एडिटर ऑपरेशन इन ऑर्डर ऑफ the add operation runs in also constant time, that is adding n elements requires of n time. All of other operations run in linear time roughly. Constant factor is low compared to linked list. Talk about this. Each array list instance has a capacity. So every array list instance जब भी object बनाओगे तो that is nothing but container and has a capacity. What is capacity? What is the maximum number? Capacity is the size of the array. Capacity क्या होता है? Internal जो array उसका size. Capacity क्या होता है? Number of elements that you store. Size. What is the capacity? Capacity is the size of the array used to elements in the list. Now it is always at least as large as the list size. As elements are added to an array list, its capacity grows automatically. Elements add होता है वैसे वैसे उसका कैपेसिटी बढ़ता है, array create. The details of the growth policy are not specified beyond the fact that adding an element is constant. This an application can increase the capacity of an array list instance before adding a large number. इसका मतलब क्या होता है? आप एडवांस में बोल सकते हो कितने कैपेसिटी का एरे इंटरनली क्रिएट होना चाहिए। अगर आप बहुत 1 बिलियन रिकॉर्ड्स क्रिएट करने वाले, अगर आप कैपेसिटी नहीं दोगे एडवांस, तो पता है कि मैं 1 बिलियन रिकॉर्ड्स ऐड करने वाला, और आप एडवांस में कैपेसिटी दोगे तो इंटरनली कितने का एरे क्रिएट करेगा? देगा। अगर आप नहीं देते हो तो बहुत दिक्कत क्या होने वाली, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला। पहले 10 का एरे, फिर वो फुल हो जाएगा, फिर नया एरे बनेगा, फिर ओल्ड एरे का कंटेंट कॉपी करो, न्यू एरे, फिर 16 फुल हो गया, फिर 32, फिर 60, फिर ऐसे करते करते आप कितने बार कॉपी पेस्ट। तो आपको पता है कि डायरेक्टली एक कंटेनर, अभी लेट से मैं वो लोग फोल्डर ए से फोल्डर बी में वैल्यूज फाइल्स, आप फोल्डर बी में नहीं कर रहे हो, पहले क्या कर रहे हो? A1 A2 A3 A4 करते करते A10,000 और A10,000 के बाद तो इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप वैल्यूज को पता होना चाहिए। अदरवाइज मतलब प्रॉब्लम तो कोई है नहीं, बस टाइम ज़्यादा लगेगा एरे क्रिएट होना, फिर उसके को टैकल कैसे किया, पहले स्पेसिफाई कर दो, कैपेसिटी का एरे क्रिएट कर दो, कर देंगे, दैट इज गुड। नाउ दिस में रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल रीएलोकेशन, टेक्निकल टर्म है, दिस में रिड्यूस। अभी उन्होंने क्या बोला है? एन एप्लीकेशन कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एन एरे लिस्ट इंस्टेंस बिफोर एडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग द इंश्योर कैपेसिटी ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है? एडवांस में आप उसको कैपेसिटी स्पेसिफाई कर सकते, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, यूज द अमाउंट ऑफ रीएलोकेशन। इंक्रीमेंटल रीएलोकेशन मतलब बार बार एरे क्रिएट होना, बार बार कंटेंट कॉपी करना, ये बंद। ओके, नोट दैट दिस इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट array list is not, इसका मतलब मल्टीपल थ्रेड्स array list. If multiple threads access an array list instance concurrently, at least one of the threads modify the list structurally, it must be synchronized. Talk about that. A structural modification in any operation that adds or deletes or more or explicit lacking array with concurrent. Talk about this. The iterators written by this class, iterator and list iterator methods are fail fast. Think on this. ये दो तीन चीजें आपको मैं आपको एज असाइनमेंट, fail fast, save, what is concurrent modification access. We're talking about this. ये बढ़ते हैं. Now this class is member of Java collection framework since 1. और ये किसने लिखा है? जॉर्ज एंड नील गफ्तार।
ये ऑथर है, इन्होंने क्लास लिखी बारे में पढ़ सकते हैं आजकल। देखो यहाँ पर एरेलिस्ट क्लास extends abstractly and implements list, random access, clonable, serializable, clonable, random access. All these are क्या लिखा है? Serializability of an class is enabled by class implementing serializable. तब कोई भी क्लास के serializable फाइल में कैसे कर सकते हो, कैसे enable करते हैं? By implement interface. Classes that do not will not state or object serialized or इंटरनली देखो आप डिफॉल्ट कैपेसिटी है। अगर आप कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हो और आपको कुछ ऐड नहीं, वहाँ पर आप एम्प्टी एलिमेंट, यहाँ पर आपको कुछ एरे दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऑब्जेक्ट एरे। यहाँ पर देखो द एरे बफर इनटू विच द एलिमेंट्स ऑफ द एरे लिस्ट आर स्टोर्ड। क्या है बफर? एलिमेंट डेटा। एलिमेंट डेटा इज द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ object. So using this, what we can do, the capacity of the array list is the length of this array buffer. Any array, an array is created, then it maintains a size. Size मतलब अभी दो चीजें अलग अलग है, size and capacity. इसका capacity कितना होगा? Equivalent to array length. Size मतलब actually कितने elements add करें। इसके constructors है कुछ, you'll find lot of constructors. Array list एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे देखो एरे लिस्ट कंस्ट्रक्टर मतलब ये डिफॉल्ट कैपेसिटी के साथ एक एरे क्रिएट करेगा। एरे लिस्ट आप दूसरा कोई दे सकते हो, यहाँ पर एंड दिया है उन्होंने। एंड क्या है? इनिशियल कैपेसिटी। क्या दिया है? इनिशियल कैपेसिटी। इनिशियल कैपेसिटी का रेंज है 0 टू लेके इंटीजर डॉट मैक्स। रेंज है उसका 0 टू लेके इंटीजर डॉट मैक्स। तो इस रेंज की आपकी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी के साथ ही अगर आपने इनिशियल स्पेसिफाई किया तो इसका मतलब उस कैपेसिटी के साथ आपका का इंटर। और आपको बहुत ज़्यादा मेथड्स दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, सारी मेथड्स। कंस्ट्रक्टर है, आप साइज इज रिटर्निंग द साइज ऑफ द एरे लिस्ट है या नहीं, साइज 0 है मतलब ये है। कंटेंट सर्च का इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है। तो एरे यहाँ पर सारे एलिमेंट्स देखो, यहाँ पर क्या किया है, बहुत सारे मेथड्स एरे लिस्ट न्यू, आपके पास कंस्ट्रक्ट एक 0 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्ट है, एक पैरामीटराइज, 2 पैरामीटर्स, एक इनिशियल कैपेसिटी एक्सेप्ट करता है और दूसरा सिलेक्शन एक्सेप्ट। पहले तो समझा हम, बहुत सिंपल। क्या करेगा ये? डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 के साथ वो एक, अभी ये भी आपको समझा कि इनिशियल कैपेसिटी है तो इंटरले एक एरे क्रिएट होगा ग्रिड साइज। ये दूसरा वाला क्या है? अभी इससे होता क्या है ना, इससे होता क्या है, क्या होता होगा? तब ऑलरेडी एक कलेक्शन, ऑलरेडी एक कंटेनर है, उस कंटेनर को एज इट इज आपको एटलीस्ट यू एक तब
इनिशियल सब इन। तीसरा कंस्ट्रक्ट, ऑलरेडी कोई कलेक्शन, ऑलरेडी कोई एज इट इज एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दे दिया 100। जनरली क्या होगा, क्रिएट डॉट लिमिट यू, क्या है ये, क्रिएट। अगर आपका कैपेसिटी इक्वल टू आपने जीरो एम्प्टी एरे क्रिएट और उसका कैपेसिटी चेंज नहीं तो इलीगल कैपेसिटी। अगर नेगेटिव में तो आपको क्या, अगर जीरो से ग्रेटर एल सिर्फ और एल्स। कुछ नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 के। नाउ ये आपने क्या क्रिएट किया, एरे लिस्ट इंस्टेंस ऑल सेट एड 11 size all other. What I'm going to do, I'm going to add the elements array list dot add, यहाँ पर ऐड के लिए आपके पास दो मेथड है, एक ऐड 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 ऑल। ये सिंगल ऑब्जेक्ट ऐड कर, अभी ये दो मेथड है, ऐड मेथड ओवरलोडेड दो मेथड। एक तो अपेंड करने के लिए एट द एंड ऐड किया 100 300, पहले 100 ऐड होगा, फिर 200, फिर 300। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 400 ऐड करना है, लेकिन जीरोथ इंडेक्स पर मुझे ऐड करना है, पर जीरोथ इंडेक्स पर। अभी जीरोथ इंडेक्स पर कौन है, 100 था, फिर 200 था, 300। जीरोथ इंडेक्स पर 100, फर्स्ट इंडेक्स पर 100, सेकंड इंडेक्स पर 300। अब मैंने क्या किया, जीरोथ इंडेक्स पर 100 की तरफ शिफ्ट 200, सेकंड इंडेक्स 100, प्रिंट कर दो। अभी मैंने ऐड कर दिया। नाउ आई एम प्रिंटिंग एरे लिस्ट। जब भी आप कोई रेफरेंस प्रिंट कराते हो तो व्हाट इज द हैपेंस, क्या होता है, एरे लिस्ट आप कोई भी क्लास का रेफरेंस प्रिंट, कोई भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, रेफरेंस प्रिंट करते तो कौन है, व्हाट इज टू is called when you try to print the reference, the two string method call होगा, there is two string method object class, object class की two क्या प्रिंट कर, कंप्लीट पैकेज नेम @hexadecimal, देखा है हमने। now that two string method is overridden in the is overdone in the array. What it does, it prints the क्या करता है, अब आपका आउटपुट क्या आएगा,
400 100 इधर। अभी आप यहाँ पर एक चीज देखो, जब भी कोई आप एलिमेंट ऐड करते हो क्या हो रहा है, एलिमेंट डेटा क्या है, एलिमेंट ऐड होता है, एलिमेंट ऐड होता है तो ऐड करने से पहले, एलिमेंट ऐड करने से अरे अरे बोलो तो कैसे ऐड करोगे, कैपेसिटी तो क्या करेगा, और इंच इंटरनल, और क्या करेगा वो एरे पास करेगा और मिनिमम कैपेसिटी एस प्लस वन, साइज कितना 10 है, 10 प्लस वन 11, साइज कितना, अभी अभी कितना एलिमेंट आपके पास, साइज कितना, अभी एक भी एलिमेंट जो है आपका साइज 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 कितना है, प्लस वन, वन तो वन यहाँ पर गया, और कैलकुलेट कैपेसिटी यहाँ पर, कैलकुलेट कैसे कैपेसिटी, पर नहीं है कैपेसिटी तो कैपेसिटी क्या होगा, लॉजिक है, कैपेसिटी टू होल्ड कैपेसिटी, बट है कैपेसिटी इज होल्ड कैपेसिटी आई प्लस न्यू कैपेसिटी, कैपेसिटी कैपेसिटी नहीं होगा, और अभी और फिर बाद में होगा कंटेंट कॉपी रहेगा, एलिमेंट ऐड करने से ऐड होगा आपका साइज, ये तो इंटरनल लॉजिक, ओके। अब यहाँ पर देखो मैंने दो वर्जन है, एक ऐड सिंगल एलिमेंट ऑब्जेक्ट, अपेंड वाला लॉजिक है, ऐड करना मतलब एडिंग द एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे रहे एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन, एडिंग एट अ स्पेसिफिक, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स दे दूं -1, इंडेक्स आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, let me add some elements, array part null, केवल null ऐड कर सकते हो, आप हेट्रोजीनियस डेटा पे ऐड कर सकते हो डेटा के दे सकते
I'm able to add homogeneous data. I'm able to add null, add specific location, and we are also able to maintain the 100, 200, 300, फिर 400 हमने कहाँ पर ऐड किया, फिर नल नल टाइम्स नल, we are able to maintain insertion order. Yes. What is array list? Array list, the advantage. Now I will remove the element. अभी आपने एक सिंगल एलिमेंट ऐड किया, क्या किया आपने, सिंगल एलिमेंट ऐड किया. आई विल ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स, जस्ट array list. अभी आपने क्या किया, एक एलिमेंट ऐड किया. अभी नेक्स्ट योर टास्क इज तो मल्टीपल. यहाँ पर array list, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लिस्ट 1, लिस्ट करो में का कंटेंट आप देखो. अभी array list 2 में और चीजें, array list 1, array list 2 कैसे बना, लेवल एज इट इज सारा सब कुछ, प्लस आपने यहाँ पर कुछ ऐड किए तीनों. अभी जो हमने अभी किया यहाँ पर, आप यहाँ ऐड ऐड ये आप फॉलो करना है. देखो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेट एलिमेंट ऐड, ऐड ऑल का डिफरेंस देखो. और क्या हो रहा है, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट, दो एलिमेंट यहाँ पर, एक लिस्ट, एक एलिमेंट. तो ऐसा नहीं चाहिए, पहले अपने लिस्ट के एलिमेंट्स किसी ऐड ऑन से लिस्ट एज इट इज नहीं है, उसके एलिमेंट्स को. समझ में आ रहा है आपको, एज इट इज वो एलिमेंट बन, लिस्ट नहीं चाहिए, उसके पहले वाले की एलिमेंट ऐड ऑल, एडिंग में ऐड ऑपरेशन. लेट्स टॉक अबाउट, क्लियर है ऐड ऑपरेशन. रिमूव करना है अभी, सिंगल. रिमूवल से पहले मैं यहाँ लिस्ट प्रिंट, लिस्ट आफ्टर रिमूव ऑपरेशन, और रिमूवल से पहले प्रिंट कर रहा हूँ. प्रिंट रिमूव करने के बाद फिर पहले
से पहले करने के बाद फिर से यहाँ पर मुझे क्या, लिस्ट रिमूव के भी बहुत सारे। अब यहाँ पर रिमूव के दो मेथड, वन इज इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर मैंने लिख दिया इंडेक्स पर, जो इंडेक्स पर कौन रहेगा, 400। अब मुझे कई बार ऐसे हो सकता है कि मुझे नल भी देना पड़ सकता, नल दे दिया, कौन सा वाला नल वाला आएगा, तीन नल है तो एक डिलीट होगा, दो रहेगा। तीन नल थे, अब मैं यहाँ पर नल की जगह पर यहाँ पर ट्रू भी लिख सकता हूँ, ट्रू, ट्रू वाला ये निकल जाएगा। टेक्स्ट दे सकते हो, हाँ हाँ। और रिमूविंग सिंगल स्पेसिफाइंग एक्स और 11, दोनों ऑप्शन है। Now I want to remove everything. All elements, सब कुछ रिमूव। Here क्या करेगा? Here everything, all the elements. क्या पढ़ा आपने? देखते हैं remove all। अब मुझे ऐसे भी हो सकता है मुझे क्या क्या रिमूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द, प्रिपेयर a list deletion, array list और removal list के अंदर में जो भी मुझे डिलीट डिलीट ये सारा मुझे यहाँ पर एक मेथड ऑल फुल में null retain all, retain all retain all को रखो। क्या बचेगा?
रहेगा, बाकी सब keep these elements, retain these and move rest of the. अब मेरा रिमूवल लिस्ट एम्प्टी है, क्या होगा? एक और एग्जाम्पल, आपको व्हाट इज फंक्शन इज क्रिकेट। मेरे पास एक लिस्ट है, अब मुझे क्या करना है, रिमूव एलिमेंट्स, रिमूव एलिमेंट्स बेस्ड ऑन यहाँ पर मैं रिमूवल को से किसी दे रहा सम कपल ऑफ नंबर। Now I won't delete all the numbers which are less, greater, remove all the elements greater than array list dot, और इसको दे दो, क्या आप क्या दे रहे हो, ये टेस्ट पास करने those who are matching, यहाँ पर प्रेडिकेट क्रिएट और यहाँ पर आपको प्रेडिकेट, और मेरे पास क्या रह राइट, प्रेडिकेट क्या है, फंक्शन है, अब आपको क्या का पुट और पैरामीटर, if number is greater than 100, number is less than 100, अभी रिमूव इफ क्या करता है, इफ मेथड क्या करता है, इज कंटिन्यूअसली आइटरेटिंग एलिमेंट्स, कलेक्शन है वो आइटरेट करेगा, then और हर बार एक चेक करेगा, टेस्ट क्या करने वाले, टेस्ट कॉल करने वाले आपकी टेस्ट, जो आपने टेस्ट क्या है, आपने तो इंटरनली क्या करने वाला है, रिमूविंग मेथड सारे लूप चलाएगा, कहाँ से, 0 से लेके 10 तक, और हर बार उस नंबर को पास करेगा किस, अभी लेट से मेरे पास 10 एलिमेंट, 10 बार वो क्या करने वाला
टेस्ट मेथड क्या करने वाले कलेक्शन, और अगर वो मेथड टेस्ट मेथड अगर टेस्ट मेथड रिटर्न, तो आपने इनपुट दिया, रिमूव मेथड क्या कॉल करने वाले इंटरनली एलिमेंट से, और जब भी नंबर पास किया टेस्ट मेथड रिटर्न कर ट्रू, फॉल्स रिटर्न करके आप ये लॉजिक खुद से भी लिख सकते हो, खुद से, या मैं इसको थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, डायरेक्टली आप इसको ऐसे क्लियर है सबको। क्या बोला था मैंने, क्या दे रहा, remove elements or numbers which are greater than two elements which are greater than delete, और बच्चे go through all of these methods, add specific add a specific element, next all elements, all मतलब